Hello students, today we will discuss about the anatomy of duodenum. So what are the general features? First we will discuss. So when you will see the duodenum is the first and widest part of your small intestine. देखिए जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन कंपोनेंट हैं duodenum, jejunum and ileum. Out of these three, duodenum is the widest part. It measures approximately 25 centimeters long. Now this is very important question. Even you have the another form of the length, that is the 10 inches. ठीक है. So this is very important measurement point of view when you will see the questions related to the length. This is very frequently asked question, length of duodenum. It is 10 inches in length or length of the duodenum is equivalent to the width of 12 finger. देखिए ये जो width of 12 finger है इसी वजह से इस पार्ट को हम duodenum बोलते हैं. duodenum मतलब वो स्ट्रक्चर जिसका जो लेंथ है वो हमारी 12 फिंगर्स की width के इक्वलेंट होता है. ठीक है. It is firmly fixed to the posterior abdominal wall. Almost entirely it is retroperitoneal and posterior area is devoid of peritoneum. ठीक है. So we already seen this component so many times that हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पहले इंट्रापेरिटोनियल थे और वो बाद में रिट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं. ठीक है. नाउ देयर आर 4 पार्ट्स. हम जब पढ़ेंगे तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज द सुपीरियर और द फर्स्ट पार्ट, then you will have the second or the descending part, then you will have third or the horizontal part, and then you will have the fourth part which is again ascending part. So there are superior, descending, horizontal and descending part. So this is the first, second, third and fourth. It is C shape, ठीक है, and it enclose the head of the pancreas. मतलब इसकी जो बीच का ये एरिया है इस सेंट्रल पार्ट में you will have the organ which is known as pancreas, which is a C-shaped structure, something like this. It has 2 flexor, this one and this is another. ये जो flexor है, ये flexor क्या है? This is the part where you will have the junction of first and second. This is the part where you will have the junction of second and third. So these turn are known as superior and inferior flexor of duodenum. Now in this diagram you can appreciate, now this is your duodenum. Now here you can see that this is the first part of the duodenum, then we will have the second part of the duodenum, then you will have the third part of the duodenum and then you will have fourth part of the duodenum. Clear? यहाँ पे ये जो first part of duodenum है ये first part इस second part के साथ जिस point पे continue कर रहा है that is known as superior duodenal flexor. और ये जो सेकंड पार्ट है ये जिस पॉइंट पे थर्ड पार्ट के साथ कंटिन्यू कर रहा है दिस पॉइंट इज नोन एज इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर. क्लियर? सो हियर यू कैन सी दैट द ड्यूडेनम इज ए सी शेप स्ट्रक्चर और उसके बीच में सी की कॉन्केविटी में यहां पे आपको ये ऑर्गन नजर आ रहा है एंड दिस इज योर पैंक्रियाज. ओके. सो द लेंथ ऑफ द पार्ट्स जो है अगर हम डिफरेंट 4 पार्ट्स की लेंथ की पर्टिकुलर बात करेंगे सो यू कैन रिमेंबर इट 2, 3, 4 एंड 1. ठीक है. हाउ टू रिमेंबर 2, 3, 4, 1. सो 2 inches, 3 inches, 4 inches and 1 inch is the length of first, second, third and fourth part of your duodenum. ठीक है. So it is total 10 inches or if you want to remember in the centimeters then it is 5, 7.5, 10 and 2.5. So it is 5, 7.5, 10 and 2.5 सेंटीमीटर्स. यानी इन तीनों इन चारों अगर डेटाज को आप देखोगे सो विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ duodenum? आंसर इज द थर्ड पार्ट ऑफ द duodenum इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द duodenum. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट. सो ये जो थर्ड पार्ट होता है दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट विच इज 10 सेंटीमीटर्स इन लेंथ. The first part may be said to lie at the level of L1. अगर हम इनका वर्टिब्रल लेवल चेक करेंगे so अगर ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है और वर्टिब्रल कॉलम में पीछे अगर हम वर्टिब्रास ड्रॉ करें दिस इज L1, L2, L3. So this first part starts at the level of L1. Clear? So it is here at the level of L1. Then what will happen? The second part rise on the right side of L2, L3. So L2, L3 के right side में यहाँ पे
ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, क्लियर। देन यू विल हैव द थर्ड पार्ट जो कि L3 को आगे से क्रॉस करेगा, सो दिस इज द थर्ड पार्ट विच क्रॉसेज द L3 फ्रॉम द फ्रंट। देन यू विल हैव द फोर्थ पार्ट। अब ये फोर्थ पार्ट क्या है, असेंडिंग पार्ट है, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, क्लियर। सो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर हमारा बना, इस सी शेप स्ट्रक्चर में ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, देन यू विल हैव द सेकंड पार्ट, देन यू विल हैव द थर्ड पार्ट एंड देन यू विल हैव द फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट इट विल असेंड, और असेंड होके कहां आ गया, इस L2 के लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। सो वर्टिब्रल लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो व्हाट आर द वर्टिब्रल लेवल? अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो L1, सेकंड पार्ट की बात करेंगे L2, L3, बट L2, L3 के किस साइड है, राइट साइड में है। थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे तो इट क्रॉसेज द L3 फ्रॉम द फ्रंट, और अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो फोर्थ पार्ट कहां आ गया, लेफ्ट में आ गया। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्ट ने मिड लाइन क्रॉस कर दिया, सो इट इज नियर द L2, क्लियर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन दिस स्लाइड। सो अगर हम इस डायग्राम में यहां पे इन चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा मिड लाइन होता है, इस मिड लाइन के इस लेवल पे अगर हम वर्टिब्रास बनाएं, क्लियर। सो ये जो L1 है, इस L1 के बिल्कुल राइट साइड से आपका क्या स्टार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, और फिर ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट जब नीचे गया तो ये L2, L3 लेवल पे गया, L3 लेवल पे थर्ड पार्ट ने मिड लाइन क्रॉस किया, और फोर्थ पार्ट विल असेंड अगेन एंड इट विल रीच अगेन टू द साइड ऑफ योर L2, क्लियर। सो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द ड्यूडेनम एंड प्लेसमेंट ऑफ this duodenum. Now we will see each and every part one by one. So first is the superior part. Now the first or the superior part of duodenum is 5 centimeter long, which I told you, and it lies right off L1. ठीक है, जो अभी जस्ट हमने देखा कि जो L1 वर्टिब्रा है उसके बिल्कुल साइड में ही होता है, ठीक है। What next is that it begins at the pylorus. We know that जो हमारा स्टमक है उस स्टमक का लोअर एंड कहलाता है पाइलोरिक एंड, और पाइलोरस कंटिन्यू करता है ड्यूडेनम से, एंड दैट इज नोन एज पाइलोरोड्यूडेनल जंक्शन। सो इट बिगिंस एट द पाइलोरस। अब इसका डायरेक्शन क्या है, स्टार्ट होने के बाद इट विल गो अपवर्ड, बैकवर्ड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि पीछे की तरफ चला गया। जो फर्स्ट पार्ट है वो अराइज होने के बाद किधर जा रहा है, राइट साइड में, लेकिन इट इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड, इट इज गोइंग बैकवर्ड। सो इट विल गो बैकवर्ड एंड टू द राइट, और इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, अगर आप फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं तो कहां से कहां तक पढ़ेंगे, पाइलोरस से स्टार्ट हो गया एंड इट विल गो टू द क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर एंड नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। सो जो हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम देखा, ये फर्स्ट पार्ट का इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है, पाइलोरस पे, और इसका ये जो एंड है, ये एंड कहां पे मिलेगा, जहां पे नेक ऑफ गॉल ब्लैडर के साथ इसका रिलेशन है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का एक्सटेंशन कहां से कहां तक होता है, पाइलोरस से लेकर के नेक ऑफ योर गॉल ब्लैडर, वहां तक का हम पोर्शन क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट। इट्स एंटीरियर सरफेस इज ऑफन डिस्कलर्ड, ग्रीनिश कलर। जब आप डिसेक्शन करते हैं तो हम फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को ग्रीन कलर का देखते हैं। क्यों ये ग्रीन कलर का नजर आता है, ये ग्रीन कलर का इसलिए नजर आता है बिकॉज जो गॉल ब्लैडर का बाइल होता है दैट विल सीप्ड, वो बाहर निकल आया एंड इट इज थ्रू द वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर, और उसकी वजह से आपको इस एरिया में ग्रीन टिंच नजर आता है, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई इवन इन द डिसेक्शन कि अगर हमें पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक के आगे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आइडेंटिफाई करना है तो वो आपको ग्रीनिश टिंच नजर आता है, बिकॉज ये जो बाइल है इट इज सीप्ड आउट थ्रू द वॉल ऑफ योर गॉल ब्लैडर। पोस्टीरियरली, अगर आप पोस्टीरियरली देखेंगे फर्स्ट पार्ट के पीछे, सो पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम we found the gastroduodenal artery. Now this slide is important here, these relations. What are the posterior relation of the first part of the duodenum? अगर आप सीलियक ट्रंक को देखते हैं तो सीलियक ट्रंक की हम एक ब्रांच पढ़ते हैं हेपेटिक आर्टरी, उस हेपेटिक आर्टरी से निकलती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, वो गैस्ट्रोड्यूडेनल फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे रन करती है। सो व्हेन यू विल सी द फर्स्ट पार्ट पोस्टीरियर रिलेशन, विल फाउंड द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी. Along with the gastroduodenal artery, we have the common bile duct. There is a portal vein, and inferior to that, you have the head of pancreas. ठीक है. So यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के बीच में अगर आप जब पैंक्रियास ड्रॉ करेंगे
तो इस पैंक्रियाज का ये जो हेड है, ये हेड कहां पे है, इस फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के नीचे होता है। क्लियर? दूसरी चीज, इस फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे क्या है, सो एक तो आपका गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द कॉमन बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन, ठीक है। सो पोर्टल वेन का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे, और यहां से ये ऊपर जाएगी, बट ये ऊपर कैसे जाएगी, लेसर मोमेंटम की फ्री मार्जिन में बाय द पोस्टीरियर एरिया बिहाइंड योर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे से होती हुई फ्रॉम दैट पार्ट इट विल असेंड, ठीक है। सो यहां पे अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम में हमने क्या किया कि ये जो लीवर है, इस लीवर की जो इंफीरियर बॉर्डर है, इसको हमने लिफ्ट कर दिया। लिफ्ट किया तो हमने गॉल ब्लैडर को भी साथ में लिफ्ट कर दिया। लिफ्ट करने के बाद, हाँ, नाउ यू कैन सी दिस मच पोर्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये जो स्मॉल पोर्शन आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का नजर आ रहा है, दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का ये छोटा सा पोर्शन ही सिर्फ क्या है हमारे पास, इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है। क्योंकि यहां पे ये जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज नोन एज हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट, इट इज नोन एज हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट। और ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, इसके पीछे से एक आर्टरी नीचे की तरफ जा रही है, विच इज अराइजिंग फ्रॉम द सीलियक ट्रंक, एंड दैट इज योर गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। सो जब आप फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का को डिसेक्शन में देखते हैं, व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम डिसेक्शन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंड दैट इज द बेसिक थिंग इज द ग्रीनिश इन कलर, बिकॉज ये जो बाइल होता है, दिस बाइल इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रीन कलर, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इसके पीछे हमें मिलती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द पोर्टल वेन एंड योर कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर? सो व्हेन यू विल सी दिस होल फर्स्ट पार्ट, सो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर एंड डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये जो प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर वाला एरिया है, इस एरिया की हम यहां बात कर रहे हैं कि द फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर इज नोन एज ड्यूडेनल कैप। पहला जो इसका कंपोनेंट है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, इसका दूसरा नाम है ड्यूडेनल कैप, and it lies between the peritoneal fold of the greater and lesser omentum, which I just told you. It forms the lowermost boundary of the opening into the lesser sac. मतलब क्या हुआ, कौन सी बाउंड्री है यहां पे, इसके ऊपर we know that यहां पे आपका राइट फ्री मार्जिन है। किसका राइट फ्री मार्जिन है, लेसर ओमेंटम का। इस राइट फ्री मार्जिन के पीछे एक फोरामेन है, दैट इज नोन एज फोरामेन ऑफ विंसलो, और यू कैन से एपिप्लॉइक फोरामेन। उस एपिप्लॉइक फोरामेन या वर्टिकल स्लिट कि लोअर मार्जिन कौन बनाता है, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। सो इट इज द सेम थिंग इज रिटन दैट इट फॉर्म द लोअर मोस्ट बाउंड्री ऑफ दिस फोरामेन, विच इज द योर अप्रोच फॉर द लेसर सेक। क्लियर? द नेक्स्ट 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो कंपोनेंट है, अगला 2.5 सेंटीमीटर, इट विल गो बैकवर्ड एंड अपवर्ड टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द राइट किडनी। सो इट इज गोइंग टूवर्ड्स द राइट किडनी। यहां पे क्या है हमारे पास, यू हैव द किडनी, सो दिस पोर्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द राइट किडनी। The next 2.5 centimeter is approaching to the right kidney. It is covered in front from with the peritoneum. So यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या हो गया, अब रिट्रोपेरिटोनियल। अगर ये रिट्रोपेरिटोनियल है, so यहाँ पे in the overall area you will find the peritoneum. Clear? So not only this first part, but the remaining whole area is become retroperitoneal. But अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमें अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम देखना है तो वी हैव टू लिफ्ट योर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द liver. So but obviously it is covered by the inferior border of the liver, so it is covered from front with the peritoneum and the inferior surface of the liver. Which lobe? Right lobe of the liver. Clear? And it is covered by the peritoneum. Its posterior surface is bare. बेयर का मतलब ये हुआ कि जो आपका ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम पोस्टीरियर वॉल पे गया, इसकी सिर्फ एंटीरियर सरफेस पे यू विल हैव द कवरिंग ऑफ द पेरिटोनियम, बट द पोस्टीरियर सरफेस इज इन द कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ पोस्टीरियर वॉल, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेयर एरिया। ठीक है, सो व्हेन यू विल सी द पेरिटोनियल रिलेशन, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, इसका फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर विच इज नोन एज ड्यूडेनल कैप इज इंट्रापेरिटोनियल, while the remaining 2.5 centimeter is retroperitoneal.
नाउ व्हाट इज ड्यूडेनल कैप? देखिए अभी हमने देखा कि जो हमारा ड्यूडेनम है उसका फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर इज नोन एज ड्यूडेनल कैप. सो इट इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इज रेफर्ड एज एम्पुला और ड्यूडेनल कैप. सो पहला क्वेश्चन यहां ये आया कि ड्यूडेनल कैप क्या है या हमें कहां मिलेगा? आंसर इज फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर. सेकेंड थिंग इज कि इंटरनली जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करके देखते हैं देन यू आर एबल टू अप्रिशिएट कि इंटरनली द म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम इज थ्रोन इनटू द न्यूमरस सर्कुलर फोल्ड. तो हमें उस इनसाइड द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स नजर आते हैं. ये परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स कहलाते हैं क्रैकरिंग्स फोल्ड और प्लाइका सर्कुलरिस और वॉल्व्यूले कॉनिवेंटिस. ठीक है. सो ये जो क्रैकरिंग्स हैं, ये जो प्लाइका सर्कुलरिस हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी लेंथ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन हो गया, वो हो गया ये फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है. सो but the mucosal wall of the first 2.5 centimeter is smooth. ये चीज है जो आपको यहां याद रखनी है. This is the question of your viva. जब भी आप duodenal cap के बारे में पढ़ रहे हैं, एक जनरलाइज फीचर हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ प्लाइका सर्कुलरिस. बट वहां पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द duodenum, और आई शुड से द एरिया ऑफ duodenum एडजेसेंट टू द पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक. ठीक है. सो उसके अंदर क्या है कि प्लाइका सर्कुलरिस एब्सेंट है. द कंसेंट्रिक फोल्ड्स बिगन्स आफ्टर दिस पार्ट. ठीक है. अब हमें ड्यूडेनल कैप मिला क्या? हमें ड्यूडेनल कैप होता क्या है? सो उसके लिए वी विल टेक ए स्पेशल काइंड ऑफ द एक्सरे एंड दैट इज नोन एज बेरियम स्टडी. सो व्हेन विल डू द बेरियम मील, जब आप पेशेंट को बेरियम देते हैं, सो द बेरियम मील शोज स्मूथ आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑफ बेरियम एंड इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ड्यूडेनल कैप एट द रेडियोग्राफ एग्जामिनेशन. ठीक है. सो ये हमने एक्सरे लिया. दिस एक्सरे इज द बेरियम मील. इसके अंदर ये जो कर्वेचर है, दिस इज द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. यहां पे आप देख रहे हो एयर, दिस इज योर फंडस ऑफ द स्टमक. यहां पे नाउ यू आर एबल टू सी दिस एरिया इज नोन एज ड्यूडेनल कैप. ठीक है. सो व्हाट इज ड्यूडेनल कैप? ड्यूडेनल कैप इज दिस. It is very frequently asked question in your exam. You have a arrow on this part and the question is identify this marked area. So this marked area is your duodenal cap. So question यहां पे दूसरा ये बना कि भाई duodenal cap बनता क्यों है? So उसका सेम छोटा सा आंसर है कि duodenal cap इसलिए बना कि ये जो एरिया है इसके अंदर प्लाइका सर्कुलरिस नहीं है, ये स्मूथ एरिया है. स्मूथ एरिया होने की वजह से यहां पे बेरियम कलेक्ट हो गया है. और अगर बाकी का आप इंटेस्टाइन देखोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें बेरियम इसलिए कलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे प्लाइका सर्कुलरिस है एंड दीज प्लाइका सर्कुलरिस ब्रेक द शेडो. ठीक है. जबकि यहां स्मूथ पार्ट है, यहां प्लाइका नहीं है, तो यहां पे आपको एक छोटा नोड्यूलर फॉर्म या यू कैन से कलेक्शन ऑफ योर बेरियम यू आर एबल टू अप्रिशिएट. ठीक है. सो दिस इज द most common site of the duodenal ulcer which may erode into the gastroduodenal artery. ठीक है. So because ये first part है तो इस first part के पीछे क्या है? gastroduodenal artery. ठीक है. अगर इस एरिया में कैंसर हो गया या इस एरिया में अल्सर हो गया तो आपको ये जो duodenal कैप दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, इसका डिस्टॉर्शन हो जाएगा. ठीक है. तो duodenal कैप तभी दिखेगा जब पूरी म्यूकोजा स्मूथ है. अगर उसकी स्मूथनेस में कहीं भी कोई ब्रेक आया, अल्सर हो गया, कोई ग्रोथ हो गई, कैंसर हो गया, तो ये अपीयरेंस गायब हो जाएगी. क्लियर. दूसरी चीज क्या है कि अगर अल्सर है और पोस्टीरियर वॉल में है तो पोस्टीरियरली यू हैव द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और अगर वो आर्टरी इरोड हुई देन इट इज ए वेरी सीवियर हेमरेज. क्लियर. सो व्हेन यू विल सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. पहली चीज ये है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है उसका फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर तो इंट्रापेरिटोनियल है, लास्ट 2.5 सेंटीमीटर रेट्रोपेरिटोनियल है. जो आपका ड्यूडेनम है ये फोरामेन ऑफ विंसलो की लोअर बाउंड्री बनाता है. फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर को हम जब रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेरियम मील तो हम उसकी एक स्पेशल अपीयरेंस देखते हैं. इस स्पेशल अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनल कैप. क्लियर. Now we'll move to the second part, and the second part is the vertical or the descending part of the duodenum, and it is lies on the right side of your midline. ठीक है.
So it is just right to the midline. It extends from the neck of gallbladder to the lower border of L3. ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ L1 से, L1 से आने के बाद इसने टर्न लिया और ये L2 L3 से होता हुआ कहां पहुंच गया, लोअर बॉर्डर ऑफ L3 पे. ठीक है, it is approximately 7 to 8 centimeter. We have seen it is 7.5 centimeter long and it goes downward from L1 to L3 vertebra. It curves downwards over the hilum of right kidney. Now this is the question of your exam. Sometimes you have the kidney in your exam and the question is based on its visceral relation. Suppose this is the right side kidney and the question is that what is the relation here along the hilum. अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है तो आंसर इज सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. सो दिस एरिया इन फ्रंट ऑफ द हाइलम ऑफ राइट किडनी is actually overlaid by the second part of the duodenum, which is the vertical part or descending part. It is covered in front with the peritoneum, which I told you that यहाँ पे क्या आने वाला है, peritoneum, because सारा की सारा duodenum क्या है, retroperitoneal, except यहाँ पे except इसलिए लिखा because जब आप transverse mesocolon का arrangement देखते हैं तो transverse mesocolon is a bilateral fold. ठीक है, इसके अंदर कितने फोल्ड हैं, 2 लेयर हैं. इट इज ए bilayered structure. There are 2 folds of the peritoneum which are forming the transverse mesocolon. तो वो जो 2 फोल्ड posterior wall से आगे जा रहे हैं तो वहां पे retroperitoneally कुछ स्ट्रक्चर है जिसपे रूट ऑफ ट्रांसवर्स mesocolon अटैच है. ठीक है, उसमें से एक है आपका सेकंड पार्ट. सो along the root of mesentery, which mesentery? Mesentery of the transverse colon, that is known as transverse mesocolon, and it is crossed anteriorly by the transverse colon. Clear? So transverse colon की जो mesentery है जिसको हम बोलते हैं transverse mesocolon, वो यहाँ पे अटैच है. ठीक है, so अगर आप इस डायग्राम को यहाँ देखोगे तो this is your second part of your duodenum. ठीक है, इस सेकंड पार्ट ऑफ duodenum के आगे एंटीरियर सरफेस पे आपको ये कट मार्जिन नजर आ रहा है. ये जो कट मार्जिन है, ये कट मार्जिन क्या है, दिस इज द कट मार्जिन ऑफ योर ट्रांसवर्स मीजोकोलोन. सो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन इस तरह से ट्रांसवर्सली अरेंज्ड है. सो यहां पे ये जो पेरिटोनियम है जो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स योर ट्रांसवर्स कोलोन, दैट इज एक्चुअली द एरिया जो इस सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के एंटीरियर सरफेस पे हमें मिलता है. ठीक है, ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, इट्स अपर हाफ लाइज इन द सुप्राकोलिक and its lower half lies in the infracolic compartment. देखिए हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हम ग्रेटर सैक देखते हैं तो ग्रेटर सैक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं विद दिस लाइन, एंड ये लाइन क्या है, दिस इज द लाइन ऑफ योर ट्रांसवर्स मीजोकोलोन. इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट हुआ ये क्या कहलाया, सुप्राकोलिक, और ये वाला पार्ट क्या कहलाया, इंफ्राकोलिक. ये इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट भी फिर इस रूट ऑफ मीजेंट्री से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, अब आप यहां पे क्या देख रहे हो, आप यहां पे देख रहे हो ड्यूडेनम. अब ये जो ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम के को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. इस ट्रांसवर्स मीजोकोलोन के अटैचमेंट से ऊपर ये वाला पार्ट क्या कहलाया, दिस इज द सुप्राकोलिक पार्ट ऑफ ड्यूडेनम. बाकी का ये वाला पार्ट क्या कहलाया, इंफ्राकोलिक पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. ठीक है, ये जो इंफ्राकोलिक पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है ये मेजॉरिटी में किस साइड है, योर राइट साइड ऑफ this mesentery. So it is very important to understand. Sometimes you have this multiple choice question कि अच्छा ये बताइए कि ड्यूडेनम जो है इसका मेजर पोर्शन ग्रेटर सैक के किस कंपार्टमेंट में है. So here you can see that major portion comes in the right part of your infracolic compartment. ठीक है, so it is the one thing. Second thing is that यहां पे 2 रिलेशन है, एक है लीवर का रिलेशन और एक है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स का रिलेशन. लेकिन ये जो लीवर का रिलेशन है ये कहां आएगा, ये आएगा इस सुप्राकोलिक पार्ट पे, और जो इंटेस्टाइन है उसका रिलेशन कहां आएगा, इस इंफ्राकोलिक पार्ट पे आएगा. ठीक है, सो जब हम सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पढ़ें हमें ये पता होना चाहिए कि हम सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को रूट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुप्राकोलिक पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट and infracolic part of second part of duodenum. Clear? Now when you will see the second part, the medial surface of the second part or the descending part enclose the head of the pancreas, and between these 2 organs, कौन से 2 organ, duodenum and pancreas, we found the superior and inferior pancreatico-duodenal artery.
ठीक है। सो अगेन अगर हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, सो ये क्या है, हमारा सेकंड पार्ट है, ये हमारा पैंक्रियाज है। इस पैंक्रियाज और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के बीच में ये जो एरिया है, इस एरिया में आप आर्टरी देख रहे हो, एक आर्टरी ये है, ठीक है, और एक आर्टरी पीछे चली गई। ये दोनों ब्रांचेस किसकी हैं? दीज आर द ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। जो आगे आई है वो क्या है? आगे वाली है एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल, जो पीछे चली गई वो क्या है? पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल। तो यहां पे आप दो आर्टरीज देख रहे हो, यहां पे नीचे से भी दो आर्टरी आ रही हैं, दीज आर द इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल। लेकिन ये जो ड्यूडेनल आर्टरीज हैं, ये ड्यूडेनल आर्टरीज एक्चुअली हैं कहां पे? दे आर बिटवीन दीज टू ऑर्गन। और ये ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक साइड है आपका पैंक्रियाज और दूसरी साइड है हमारा दिस ड्यूडेनम। क्लियर? सो ये जो ग्रूव है, दिस ग्रूव इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरीज। क्लियर? सो द कॉमन बाइल डक्ट, अब सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इन दोनों को अगर आप देखते हो तो इनके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रिलेटेड है, दैट इज सीबीडी। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, डिसेंड होती है ऑन द मीडियल ऑफ द अपर 5 सेंटीमीटर ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जब आप यहां पे ये जो देख रहे हैं, दिस इज योर ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम के अंदर हमने क्या देखा, इसको काट के जब हमने खोला तो यू कैन सी दैट ये वाला पार्ट तो स्मूथ है, ये स्मूथ पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम क्या कहलाया था? ड्यूडेनल कैप। ठीक है, यहां पे आप ये देख रहे हो प्लाइका सर्कुलरिस जो कि परमानेंट फोल्ड है। अब इस फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे आप ये ग्रीन कलर की ट्यूब जाते हुए देख रहे हो, दिस ग्रीन ट्यूब इज सीबीडी। ये सीबीडी फर्स्ट पार्ट के पीछे से गई, इसने जैसे ही फर्स्ट पार्ट के नीचे आई, ये सेकंड पार्ट के मीडियली मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसकी ये जो लेफ्ट बॉर्डर है और यू कैन से द मीडियल बॉर्डर है, उसके अलोंग रन कर रही है। ठीक है, सो यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो हमारी सीबीडी है वो ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के पीछे होती है और सेकंड पार्ट के इनर्स बॉर्डर पे रन करती है, ओनली अप टू द 5 सेंटीमीटर, ओनली फॉर द 5 सेंटीमीटर। इन its posterior medial wall, it receives the common opening of the bile duct and the main pancreatic duct at the hepatoduodenal ampulla of Vater। ठीक है, ये जो आपकी ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या है? दिस इज द ओपनिंग वेयर यू हैव द, बिफोर दिस ओपनिंग आपकी जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है और सीबीडी है वो दोनों मिल गई और मिलके यहां पे ओपन हो गई। और ये वाला पॉइंट क्या है? दिस इज द एरिया वेयर यू हैव द एम्पुला ऑफ वेटर ओपनिंग एंड इट इज द समिट ऑफ द मेजर ड्यूडेनल पैपिला। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाया? मेजर ड्यूडेनल पैपिला। हाफवे अलोंग द सेकेंड पार्ट विच इज 8 to 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइलोरस। देखिए ये जो लेंथ है या ये जो डिस्टेंस है, ये पाइलोरिक एंड है, यहां से इसकी ये जो डिस्टेंस है इस मेजर ड्यूडेनल पैपिला की, ये कितनी होती है? आंसर इज 8 to 10 सेंटीमीटर। ये 8 to 10 सेंटीमीटर कैसे हुई? 5 सेंटीमीटर तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सो अगर इसमें से आप 5 निकाल दें, सो इट इज अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लैक्सर। ठीक है, सो ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ द सेकेंड पार्ट वी हैव द ओपनिंग ऑफ मेजर ड्यूडेनल पैपिला। ठीक है, और इसके बिल्कुल नीचे ये जो पार्ट है, ये पार्ट जंक्शन है किसका? आपके फोरगट और मिडगट। ठीक है, फोरगट और मिडगट का जंक्शन कहां मिलता है हमें? वी हैव द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ मेजर ड्यूडेनल पैपिला, जहां पे आपका सीबीडी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रहा है। So this is the important thing which you have to keep in mind. Now the second thing is that superior to the major duodenal papilla we have a arch mucosal fold that is known as monk hood. उसका नाम क्या है? Monk's hood. ठीक है, so it is a information based question. Sometimes you have this multiple choice question where you will find Monk's hood. Answer is in the second part of duodenum. Posteriorly, the second part is contact with the hilum of the right kidney, the right renal vessels and the inferior vena cava, which I just told you कि यहां पे जब आप second part of duodenum देखते हैं तो ये right kidney है, right kidney से निकली right renal vein, ये open कहां हो रही है? इस inferior vena cava में हो रही है। ठीक है, और इसके आगे यहां पे ये इस तरह से आपका second part of duodenum placed है। ठीक है, so इस second part of duodenum के पीछे आ गई inner side of your right kidney, that is the hilum, your this vein and the part of inferior vena cava.
अगर हम पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल पे देखें कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द ड्यूडेनम, सो ये हमारा पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल है और यहां पे आप ये एब्डोमिनल आर्टा देख रहे हैं। नाउ इसके आगे यहां पे दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। लेकिन ये जो ड्यूडेनम है ये पोस्टीरियर वॉल पे डायरेक्ट नहीं अटैच हो रहा है। क्यों अटैच नहीं हो रहा है? क्योंकि इस पोस्टीरियर वॉल पे अभी कुछ और ऑर्गन्स भी रखे हुए हैं, उन ऑर्गन्स के आगे ये ड्यूडेनम प्लेस होता है, ठीक है। यहां पे ड्यूडेनम के आप 3 पार्ट देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। अब ये प्लेसमेंट कैसे है? यहां पे देखिए आप पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे हमने कुछ और ऑर्गन्स लगा दिए, हमने लगा दिया दोनों साइड किडनी, यू हैव द इंफीरियर वेना केवा, यू हैव द योर राइट रीनल वेन। अब इसके आगे हम अगर ड्यूडेनम प्लेस करें देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि पिछले स्लाइड में और इस स्लाइड में फर्क ये है कि ड्यूडेनम पोस्टीरियर वॉल पे डायरेक्ट नहीं रखा हुआ है। ड्यूडेनम और पोस्टीरियर वॉल के बीच में ये क्या आ गया? किडनी। ये क्या आ गया? इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इसीलिए जब हम पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ ड्यूडेनम पढ़ रहे हैं, सो वी आर नॉट राइटिंग डायरेक्टली द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, वी आर राइटिंग द नेम ऑफ ऑर्गन्स व्हिच आर एक्चुअली प्रेजेंट बिहाइंड द ड्यूडेनम व्हिच आर आल्सो रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। सो ये जो आपका किडनी है, इस किडनी का जो इनर बॉर्डर है जहां पे हम एंट्री देखते हैं वेसल्स की, जिसको हम हाइलम बोलते हैं, ये वाला एरिया क्या कहलाता है? हाइलम। इस हाइलम के अलोंग यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं? एंटीरियरली क्या है प्लेस्ड? आपका ड्यूडेनम है, ठीक है। सो ड्यूडेनम का प्लेसमेंट कहां है? इस एरिया में है, क्लियर। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप इसके आगे पेरिटोनियम का रिलेशन देखेंगे, नाउ सी दिस इज द पेरिटोनियल रिलेशन. Now when you will see the peritoneal relation, now you are not able to see the duodenum as well as the other structure because everything is become retroperitoneal. And here you can see that this is the margin of your attachment and this is the attachment of your transverse mesocolon. ठीक है. So इस slide को हम एक बार वापस देखें. So this is your what? Posterior abdominal wall. इस posterior abdominal wall पे आपने कुछ organs रखे हुए हैं. This is your kidney, your inferior vena cava on the right side. This is your abdominal aorta. इसके आगे you have the placement of the duodenum और duodenum क्या है? Retroperitoneum. So इसके आगे this is the placement of your peritoneum. Now यहाँ पे ये जो first part of duodenum है, this first part of duodenum is hidden by the right lobe of the liver. The second part is downward, which is again retroperitoneal. The third part is crossing the midline, and the fourth part is reaching on the left side. Clear? So second part of the duodenum is important surgically. Now this is very important thing which you have to understand कि जब हम सर्जिकली बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट. इन सब में ये वाला कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट द एंट्री ऑफ ड्यूडेनम इनटू रेट्रोपेरिटोनियल एरिया. यानी अगर हम इस ड्यूडेनम के पीछे जाना चाहते हैं तो यहां से हम नहीं जा सकते. क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहां पे क्या है? आपके पास पैंक्रियाज है. यू हैव द ऑर्गन इज नोन एज पैंक्रियाज. सो अगर आप यहां पे डिसेक्शन करने की कोशिश करोगे यू विल डैमेज दिस ऑर्गन. ठीक है. सो व्हाट इज द एरिया वी हैव इज दैट वी लिफ्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम फ्रॉम इट्स राइट साइड और यहां से हम रेट्रोपेरिटोनियली डिसेक्शन करके कहां जाते हैं? पीछे की तरफ जा सकते हैं. Surgical evaluation of this part of the duodenum requires mobilization from its medial and lateral attachments. ठीक है. This allow for the future evaluation of the duodenum, pancreas and bile duct. And which part of the pancreas? Particularly when we are trying to approach the head of the pancreas, उस टाइम ये second part of the duodenum बड़ा important हो जाता है और इस second part of duodenum की जो ये वाली border है, right border, इस right border को lift करते हुए we can approach the retroperitoneal space. Clear? Now here you can see that this is the area where again you can see the opening of your this major duodenal papilla where we have the opening of CBD and the pancreatic duct. अब यहां पे again ये आपका क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट के पीछे आपका बाइल डक्ट CBD. ये अपर फर्स्ट this 5 centimeter is on the inner side of your second part और यहां पे ये आ रहा है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट. ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट इसके साथ ज्वाइन हो गया है एंड यू हैव द ओपनिंग. अब यहां पे आपको दिख रहे हैं परमानेंट फोल्ड्स. ये फोल्ड्स इस एरिया में नहीं है एंड ये एरिया जिसके अंदर फोल्ड नहीं है बिल्कुल स्मूथ नजर आ रहा है, जिसको हमने नाम दिया ड्यूडेनल कैप ऑन द बेरियम स्टडी. और ये वाला पार्ट जो है, अब अगर यहां से डिसेक्शन करें
तो वी कैन लिफ्ट दिस होल एज ए सिंगल पीस, बिकॉज यहां पे बीच में इतना गैप नहीं है कि आप यहां पे डिसेक्शन कर सकें. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम सर्जिकली डिसेक्शन करना चाहते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे जाना चाहते हैं, तो हम इसकी राइट बॉर्डर को लिफ्ट करके वी कैन अप्रोच द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस. ठीक है. Now we'll move to the third part. Third part is the horizontal part, and I told you it is the longest part of the duodenum, and it is approximately 10 centimeter in length. Clear? It courses from the right to left across the vertebral column, aorta, inferior vena cava at L3 level. ठीक है. So जब ये third part आपका इधर से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो इसने तीन स्ट्रक्चर को क्रॉस किया, इंफीरियर वेना केवा, आर्टा, और बट ऑब्वियसली आर्टा के पीछे क्या है, योर वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. और किस लेवल पे, ये लेवल क्या है, दिस इज द लेवल ऑफ L3 वर्टिब्रा. ओवर इट्स एंटीरियर सरफेस डिसेंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स एंड द रूट ऑफ द मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. सो जो इसकी एंटीरियर सरफेस है, इस एंटीरियर सरफेस के आगे, ओवर द एंटीरियर सरफेस देयर इज अ डिसेंड ऑफ दिस आर्टरी, दैट इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और इसके साथ ही यहां पे क्या होगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन. सो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के आगे से होते हुए कहां जाते हैं, नीचे जाते हैं, और आई शुड से दे आर एंटरिंग इनटू द मेसेंट्री, रूट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेसेंट्री. ठीक है. सो यहां पे सवाल ये आया कि अगर मुझे थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम डिसेक्शन में आइडेंटिफाई करना है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा. इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, बिकॉज The problem is that this area is retroperitoneal. ठीक है. ये आपको दिखेगा नहीं, आपको पूरा इंटेस्टाइन खाली करना पड़ेगा. And once you will take out the intestine from this abdominal cavity, particularly the greater sac, you are able to see the posterior wall. And वहां पे when you will do the dissection, but mainly the superior mesenteric artery, you have to trace the superior mesenteric artery, and you will find the duodenum posterior to this artery. ठीक है. So the third part of duodenum is एक्चुअली सैंडविच बिटवीन द टू वेसल्स. एंटीरियरली कौन सी वेसल है, दिस इज योर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और पोस्टीरियरली कौन सी वेसल है, दिस बिग वेसल, एंड दैट इज योर एब्डोमिनल aorta. Posteriorly found the abdominal aorta and the testicular and ovarian branches, right ureter, right psoas major and inferior vena cava. तो जब आपका ये थर्ड पार्ट इस तरह से क्रॉस कर रहा है मिड लाइन, तो सेंटर में तो क्या है, aorta है, लेकिन राइट साइड के भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके आगे से होता हुआ ये थर्ड पार्ट किधर चला गया, आपके राइट से लेफ्ट चला गया. तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इसने क्रॉस किए. इसने क्रॉस किए आपके गोनेडल वेसल्स, इसने क्रॉस किया आपका राइट यूरेटर, इसने क्रॉस किया राइट psoas मेजर एंड इंफीरियर वेना केवा. ठीक है. सो इंफीरियर वेना केवा तो यहां होता है, इट इज जस्ट पैरेलल टू द aorta ऑन द राइट साइड. सो इसने क्रॉस किया इंफीरियर वेना केवा, इसने क्रॉस किया राइट गोनेडल वेसल्स, राइट यूरेटर, राइट psoas मेजर. सुपीरियरली क्या है इसके रिलेशन में, अगर आप इसको सी शेप स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पे क्या आएगा, this is pancreas. So superiorly will have the uncinate process and the lower part of the head of pancreas, and as I told you that this whole structure is retroperitoneal, so it is covered by the peritoneum of the posterior abdominal wall just below the transverse mesocolon. ठीक है. So हमने अभी देखा कि यहां पे ऐसे transverse mesocolon का attachment है. So transverse mesocolon के नीचे थर्ड पार्ट है, so it is covered by the transverse mesocolon के नीचे वाली peritoneum से. ठीक है. except at the line of the root of mesentery. So अगर आप root of mesentery पढ़ते हो तो ये फोर्थ पार्ट है, यहां से root of mesentery स्टार्ट होती है और वो इस तरह से जाती है, किधर जाती है, that is going towards the right iliac fossa. So ये जो root of mesentery इस तरह से जा रही है, ये root of mesentery थर्ड पार्ट ऑफ duodenum के आगे से होती हुई obliquely लेफ्ट से किधर जाती है, राइट जाती है. And therefore in both right and left infracolic compartment you are able to appreciate this. ठीक है. पहली बात क्या हुआ, ये जो हमारा थर्ड पार्ट है ये इस ट्रांसवर्स मेसोकोलोन के नीचे है मतलब किस कंपार्टमेंट में है, इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट में. अब ये जो रूट ऑफ मेसेंट्री है ये इस इंफ्राकॉलिक को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, राइट एंड लेफ्ट, बट हमारा थर्ड पार्ट दोनों में आ रहा है, राइट में भी आ रहा है, लेफ्ट में भी आ रहा है, बट मेजोरिटी किस में है, राइट इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट. क्लियर. The horizontal third part crosses the midline and itself crossed anteriorly by the superior mesenteric vessels. This is important relation. It is very frequently asked question. If an individual quickly lost much weight, these vessels can constrict the duodenum
and cause a blockage of the gastrointestinal tract which is known as superior mesenteric artery syndrome. क्लियर होगा क्या कि ये आपका एब्डोमिनल आर्टा है, इस एब्डोमिनल आर्टा से आ रही है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और उसके बीच में यहां पे है आपका थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम. क्लियर. अगर एक पर्सन बहुत तेजी से अपना वेट लूज करता है तो कई बार ये सुपीरियर मीजेंट्रिक और आर्टा के बीच में ये थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, एंड इन दैट केस देयर इज ए इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड दिस इज नोन एज सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम. नाउ we'll move to the fourth part, that is the smallest part or you can say ascending part, which is present on the left side. So it is left to the aorta and it is only 3 centimeter in length. The junction of the third and fourth part कैसे identify करते हैं, ये landmark क्या है, that is the passage of superior mesenteric artery. So this is your first part, second part, third part and the fourth part. अगर मुझे इस यहां पे superior mesenteric artery मिली तो ये जो सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है इसके बाद वाला जितना भी पार्ट है ड्यूडिनम का ये क्या कहलाएगा, फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम. क्लियर. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द आर्टा कहां होगा, ये आर्टा के लेफ्ट साइड में, बिकॉज ये आपका आर्टा है. सो ये पार्ट कहां है, लेफ्ट साइड में है. इट इज एट द लेवल ऑफ L2. देखिए ये L1 पे स्टार्ट हुआ, ये L2 L3 से नीचे आया, L3 पे इसने क्रॉस किया और वापस ही ऊपर चला गया, तो वापस किस लेवल पे आ गए आप, L2 लेवल पे आ गए. ठीक है. So it is on the left side of the aorta at the L2 level. It bends forward. अब ये आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा. स्टार्टिंग हुई थी बैकवर्ड से. फर्स्ट पार्ट कहां गया था, राइट एंड बैकवर्ड. अब ये फोर्थ पार्ट किधर जा रहा है, लेफ्ट एंड फॉरवर्ड, एंड इट इज फ्रॉम द ड्यूडिनो-जेजुनल फ्लेक्सर टू बिकम कंटिन्यू विद द जेजुनम. ठीक है. सो इसका ये जो लास्ट टर्मिनल एंड है, ये टर्मिनल एंड क्या कहलाया, दिस इज ड्यूडिनम, दिस इज जेजुनम, तो ये बैंड कहलाया ड्यूडिनो-जेजुनल फ्लेक्सर. ठीक है. इट लाइज ऑन द लेफ्ट श्वास एंड लेफ्ट लंबार सिंपैथेटिक ट्रंक. सो यहां पे कौन सी मसल होगी, लेफ्ट साइड की श्वास मेजर. यहां पे कौन सी मसल होगी, राइट साइड की श्वास मेजर. सो बिकॉज ये लेफ्ट साइड है तो इसके पीछे कौन सी मसल है, लेफ्ट श्वास मेजर मसल है. इट इज कवर्ड इन फ्रंट बाय द पेरिटोनियम, बट ऑब्वियसली बिकॉज इट इज रिट्रोपेरिटोनियम, एंड ऑन द लेफ्ट इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट. ये कौन से कंपार्टमेंट में काउंट होगा, इंफ्राकॉलिक, बट टुवर्ड्स द लेफ्ट, and it is also covered by the coils of jejunum. Superior to this part we have the body of pancreas. So यहां पे अगर आप pancreas बनाते हो, so ये हो गया आपका uncinate process. You will have head, neck, body. So ये जो body वाला portion है, ये fourth part of duodenum के ऊपर से होता हुआ किसमें कन्वर्ट हो गया, टेल के साथ कंटिन्यू कर गया. ठीक है. सो जब भी हम फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं तो फोर्थ पार्ट कैसा है, सबसे छोटा है. फोर्थ पार्ट किधर है, मिड लाइन के लेफ्ट में है. क्यों है मिड लाइन के लेफ्ट में, बिकॉज थर्ड पार्ट ऑलरेडी मिड लाइन क्रॉस कर चुका है, और फोर्थ पार्ट जो है वो फोर्थ पार्ट किसके साथ कंटिन्यू करेगा, जेजुनम के साथ कंटिन्यू करेगा, एंड दैट इज नोन एज ड्यूडिनो-जेजुनल फ्लेक्सर. ठीक है. नाउ विल सी द ड्यूडिनो-जेजुनल फ्लेक्सर, इट कंटिन्यूएशन ऑफ द ड्यूडिनम वेयर इट बिकम्स जेजुनम. सो ड्यूडिनम जिस पॉइंट पे जेजुनम में कंटिन्यू हुआ वो जंक्शन कहलाया ड्यूडिनो-जेजुनल फ्लेक्सर, एंड इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन. देखिए ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पास होता है लोअर बॉर्डर ऑफ L1 से. कहां से, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 से. इसके नीचे आ गया L2, और अभी अभी हमने देखा कि ये जो आपका थर्ड पार्ट है जिसने L3 क्रॉस किया वो टर्न मार के आया इधर. सो ये जब टर्न मार के आया तो ये क्या कहलाया, फोर्थ पार्ट, और यहां से अब क्या शुरू होगा, अब शुरू होगा आपका जेजुनम. तो ये जो ड्यूडिनो-जेजुनल फ्लेक्सर है ये इस ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के बिल्कुल नीचे है, बिकॉज हम L2 के लेफ्ट साइड पहुंच चुके हैं. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड. हियर द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम इंट्रापेरिटोनियल by becoming surrounded by the two leaves of the peritoneum from the mesentery, and ये कहां से आ रही है, ये posterior wall से आ रही है. ठीक है. सो यहां तक अभी जो हमने ड्यूडिनम पढ़ा, ये ड्यूडिनम का क्या था पोर्शन, पूरा रिट्रोपेरिटोनियल, लेकिन इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, इंट्रापेरिटोनियल, बिकॉज नाउ इट एंटर्स इनटू द mesentery. Now this duodenojejunal flexure is a fixed portion. It is not mobile. ऐसा नहीं है कि मीजेंट्री के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन मूव कर रही है तो ये वाला जंक्शन भी मूव करता है. देखिए ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेनी है कि हमारा जेजुनम तो मूवेबल है, लेकिन ये ड्यूडिनो-जेजुनल जंक्शन मूव नहीं करता है, ये एक जगह ही रहता है. इट इज ए फिक्स एंड.
It is a fixed flexor. So it is fixed to the left psoas fascia. इसके पीछे मसल कौन सी है? Left psoas major muscle है. So it is fixed to the left psoas fascia by the fibrous tissue and also supported by the suspensory muscle of the duodenum, and that is known as ligament of Treads. What is the another name? Ligament of Treads. ठीक है. So इस एंड को फिक्स करने के लिए दो फैक्टर हैं, एक पीछे की तरफ जो श्वास मेजर मसल है उसका फेशिया, और दूसरा लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स. ठीक है. सो लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स क्या चीज है? इट इज ए सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एट ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन. तो पहली चीज यहां से यहां तक कि भाई लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स कहां मिलता है. सो लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स मिलता है, इट इज प्रेजेंट एट ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन. ठीक है. दूसरी बात, it extends from the distal end of the duodenum or the proximal part of jejunum superiorly to the right crus of diaphragm. तो ये फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये आपका मिड लाइन में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, और इस वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट साइड में, किधर? लेफ्ट साइड में आपने देखा कि यहां पे आपका फोर्थ पार्ट है और ये आपका ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन है. ठीक है. अब इस जंक्शन से क्या शुरू हुआ? इस जंक्शन से शुरू हुआ ये लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स, और ये लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स किधर जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है. यहां पे है आपका डायफ्राम. इस डायफ्राम का ये वाला पार्ट है राइट क्रस. ये वाला पार्ट क्या है? राइट क्रस. ये राइट क्रस ऑफ डायफ्राम के कुछ फाइबर्स इस तरह से मिड लाइन क्रॉस करके इस ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर तक पहुंच गए, और ये वाले जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स क्या कहलाए? लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स. ठीक है. सो पहली बात तो ये हो गई कि ये कहां है? दिस लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स इज एक्चुअली सपोर्टिंग द ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन एंड इट इज आल्सो नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ड्यूडेनम, जो कि या तो डिस्टल एंड ऑफ ड्यूडेनम या फर्स्ट पार्ट ऑफ जेजुनम को कनेक्ट करता है राइट क्रस ऑफ डायफ्राम से. ठीक है. सो ये वाला पार्ट एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन का कि भाई ड्यूडेनोजेजुनल जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये लेफ्ट क्रस से कनेक्ट कर रहा है या राइट क्रस से? आंसर इज राइट क्रस से कनेक्ट कर रहा है. ठीक है. लेकिन देखो फ्लेक्सर लेफ्ट साइड है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता है कि शायद लेफ्ट क्रस से कनेक्ट कर रहा हो. नहीं, ये राइट क्रस से कनेक्ट कर रहा है. दूसरी चीज कि इट कंटेन्स स्केलेटल मसल एज वेल एज स्मूथ मसल. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई राइट क्रस दिस लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स किससे बनता है? लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स स्मूथ एज वेल एज स्केलेटल दोनों मसल से बनता है. ठीक है. स्केलेटल मसल फाइबर का कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? स्केलेटल मसल फाइबर का कंट्रीब्यूशन डायफ्राम के राइट क्रस से आ रहा है. ठीक है. सो इट कंटेन्स द स्केलेटल मसल फाइबर दैट रन्स फ्रॉम द राइट क्रस ऑफ डायफ्राम टू द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द सीलियक ट्रंक. ठीक है. सो यहां पे बीच में आ गया एब्डोमिनल आर्टा, और एब्डोमिनल आर्टा के आगे हो गया सीलियक ट्रंक. ठीक है. सो हमने इस पूरे लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक तो ये पोर्शन जो कि सीलियक ट्रंक और राइट क्रस के बीच में है, और एक वो पोर्शन जो सीलियक ट्रंक और इस ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर के बीच में है. आपने क्या किया? इस पूरी लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक इस सीलियक ट्रंक से और राइट क्रस तक, एक इस सीलियक ट्रंक से इस ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर तक. ठीक है. ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाया स्केलेटल मसल से बना हुआ. इसमें स्केलेटल फाइबर्स कहां से आए? फ्रॉम द डायफ्राम. Smooth muscle fibers runs from the celiac trunk behind the pancreas to the muscle coat of the duodenojejunal flexor. ठीक है. अब ये वाला जो पोर्शन है that is from the celiac trunk to the duodenojejunal junction, ये वाला पोर्शन होता है स्मूथ मसल फाइबर से बना हुआ. ठीक है. तो लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स दो कंपोनेंट से मिलकर बना, स्केलेटल एंड स्मूथ. स्केलेटल फाइबर्स कहां से कहां तक है? राइट क्रस से लेके सीलियक ट्रंक तक, और स्मूथ मसल फाइबर्स कहां से कहां तक है? सीलियक ट्रंक से लेके ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर तक. ठीक है. ये वाले फाइबर्स कहां से आए? ये आए डायफ्राम से. ये वाले फाइबर्स कहां से आए? ये जो आपकी वॉल है ड्यूडेनम की, उसके साथ मर्ज हुए फाइबर्स हैं. दूसरी चीज कि ये जो आपका लोअर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन यहां पे जब आप ड्यूडेनम देखते हैं तो उस ड्यूडेनम के पीछे है. ठीक है. सो ये लोअर पोर्शन ऑफ योर लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स इज बिहाइंड द पैंक्रियाज. किसके पीछे है? पैंक्रियाज के पीछे है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट स्मूथ मसल फाइबर्स जो कि लोअर पार्ट में है, दे आर बिहाइंड द पैंक्रियाज. ठीक है. इट पासेस सुपीरियरली पोस्टीरियर टू द पैंक्रियाज एंड एंटीरियर टू द aorta.
ठीक है, aorta के आगे और pancreas के पीछे, ठीक है। सो लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स जब भी आप पढ़ें तो लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स के बारे में पहली चीज क्या कि लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स क्या है, इट इज सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ ड्यूडेनम। दूसरी चीज क्या कि ये ड्यूडिनो-जेजुनल फ्लैक्सर को फिक्स करके रखता है। तीसरी चीज इट इज हैविंग स्केलेटल एज वेल एज स्मूथ मसल फाइबर्स। स्केलेटल मसल फाइबर्स कहां से आए, स्केलेटल मसल फाइबर राइट क्रस ऑफ डायफ्राम से आए और कहां तक रहे, इसकी सीलियक ट्रंक तक रहे। सीलियक ट्रंक से लेकर के ड्यूडिनो-जेजुनल फ्लैक्सर तक का जो लोअर पोर्शन है उसमें क्या है, स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। और ये जो लोअर पोर्शन है ये किसके पीछे है, ये पैंक्रियाज के पीछे होता है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स। नाउ द नेक्स्ट इज द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की जब हम बात करेंगे ड्यूडिनम की तो हमें पता है कि ड्यूडिनम का जो सेकंड पार्ट है जहां पे मेजर ड्यूडिनल पेपिला की ओपनिंग है उसके ऊपर क्या है, फोरगट, उसके नीचे क्या है, मिडगट। यानी ड्यूडिनम की सप्लाई कहां से आएगी, सीलियक ट्रंक से भी आएगी और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से भी आएगी। ठीक है, so the duodenum is supplied by the superior as well as inferior pancreatico-duodenal artery। देखिए सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी जो है ये सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है हिपैटिक आर्टरी की। और हिपैटिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, सीलियक ट्रंक की। इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल ये किसकी ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सो सुपीरियर मेसेंट्रिक मिडगट का कंपोनेंट, सीलियक ट्रंक फोरगट का। ठीक है, वीनस ड्रेनेज की बात करोगे तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहां चली गई, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड पोर्टल वेन। क्लियर? लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए देयर आर द ड्यूडिनल लिम्फ। ड्यूडिनल लिम्फ जो होता है वो ड्रेन कर जाता है किसके अंदर, सुपीरियर एंड इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल वेसल्स के अलोंग जो लिम्फ नोड है एज वेल एज जो मेसेंट्रिक आर्टरी के अलोंग लिम्फ नोड है। ठीक है, देन यू विल सी दिस डायग्राम कि यहां पे इसकी अगर ब्लड सप्लाई देखनी है तो ये जो ऊपर से आ रही है ये ऊपर से क्या आ रही है, दिस इज गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। इस गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ने दी पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल, सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल की दो ब्रांच, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल। यहां से आ रही है इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल जो कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है। ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी नीचे जा रही है इसकी इस आर्टरी से दो ब्रांचेस निकली, फिर से एक गई पीछे एक गई आगे। जो आगे आई वो कहलाई इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल की एंटीरियर ब्रांच, जो पीछे गई वो कहलाई पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल। और यहां के इस ग्रूव में ये दोनों एनास्टमोस हो गए एंड दे विल सप्लाई दिस ड्यूडिनम। क्लियर? सो इन नटशेल व्हेनेवर वी हैव द ब्लड सप्लाई ऑफ द ड्यूडिनम, हमें दो ही कंपोनेंट याद रखने हैं कि कौन सी ब्रांच है जो सीलियक ट्रंक से है, कौन सी ब्रांच है जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। क्यों? बिकॉज ड्यूडिनम इज एक्चुअली हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फोरगट एंड मिडगट कंपोनेंट्स। नाउ नर्व सप्लाई, व्हेन यू विल सी द नर्व सप्लाई अगेन इट इज सप्लाइड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी आपके पास सिंपैथेटिक भी होगा और पैरासिम्पैथेटिक भी होगा। और ये ऑटोनोमिक नर्व्स कैसे पहुंचती हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्लक्सेस अराउंड द आर्टरीज। पैरासिम्पैथेटिक कहां से आती है, पैरासिम्पैथेटिक हमेशा एक ही सोर्स है, दैट इज द वेगस। और वेगस क्या करता है, इट ऑगमेंट्स द पेरिस्टाल्सिस एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशन। पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाएगा, इंटेस्टिनल सिक्रीशन रिलीज कराएगा। सिंपैथेटिक का उल्टा है काम, अगर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है तो पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएंगे, सिक्रीशन कम हो जाएंगे एंड इट इज वासोकंस्ट्रिक्टर एंड नॉर्मली इनहिबिट द पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, सिंपैथेटिक का सोर्स क्या है, सिंपैथेटिक का सोर्स है T9 to T10 सेगमेंट, T9 to T10 segment and this is the referred pain responsible for the referred pain of the duodenum around the umbilicus। ठीक है, so pain impulses जो होते हैं they are carried by the sympathetic pathway mainly and the small intestine pain is used or felt in the umbilical region also in abdomen area। clear? so हम जब रेफर्ड पेन की बात करते हैं हमें रेफर्ड पेन में एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारे विसरल एफरेंट्स हैं वो विसरल एफरेंट किस सोमेटिक एफरेंट के साथ स्पाइनल नर्व कॉर्ड के अंदर एक दूसरे को शेयरिंग कर रहे हैं। जहां पे कॉमन शेयरिंग आपको दिख जाए बिटवीन द विसरल एफरेंट्स एंड सोमेटिक एफरेंट, वो सेगमेंट पे जाके रेफर्ड पेन होगा। फॉर एग्जांपल यहां का जो विसरल एफरेंट है अगर वो T10 सिंपैथेटिक सेगमेंट में जा रहा है, इन द सेम वे जो स्किन का हमारा जो सप्लाई है वहां से जो सोमेटिक सेगमेंट जो T10 से आ रहा है, दे आर शेयरिंग द T10 कॉर्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द रेफर्ड पेन। ठीक है, सो
at the end of this class of the duodenum what we are able to understand कि duodenum के कितने पार्ट हैं, duodenum के 4 पार्ट होते हैं, duodenum किस तरह से अरेंज होता है, कौन सा पार्ट retroperitoneum है, which is the largest part, what are the different relations of these 4 parts and what is the duodenal cap जो हमें रेडियोलॉजी में सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, and at the last we have seen कि जो आपका ओवरऑल ब्लड सप्लाई है वो फोरगट और मिडगट दोनों से क्यों कंट्रीब्यूट होता है. So this is all for today's lecture. Thank you.